in today's class we will discuss regarding the diagnosis of iron deficiency anemia. Okay, definition, etiological factor, pathophysiology, clinical manifestations already we have discussed in the previous classes. So today diagnosis of iron deficiency anemia. Diagnosis is by the history collection, physical examination, routine blood investigation. Routine blood investigation में CBC that provides the information regarding the decreased hemoglobin. In CBC HB is low. Okay, HB low दिखता है. Okay, next MCV, mean corpuscular volume is also low. Okay, next PCV, okay, packed cell volume is also low. Okay, mean corpuscular hemoglobin concentration is also low. Okay, so these all values are low in the iron deficiency anemia, or RBCs are also low, red blood cells 4.5 to 5.5 milli, okay, cubic per meter. Okay, normal RBC जितना होता है उससे कम दिखने चालू, क्योंकि these all values are decreased in the iron deficiency anemia. Iron deficiency anemia में ये सब का वैल्यू कम दिखने मिलता है. ओके, टोटल ब्लड काउंट में. नेक्स्ट, लेटर ऑन द टोटल ब्लड काउंट, पेरिफेरल ब्लड फिल्म. ओके, पेरिफेरल स्मीयर भी बोलते हैं. पेरिफेरल स्मीयर में क्या आता है? पेरिफेरल स्मीयर माइक्रोसाइटिक hypochromia, okay, RBCs are seen in the peripheral smear blood. Okay, peripheral smear blood में RBC कैसे दिखने चालू होता है? माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल्स दिखता है. माइक्रोसाइटिक मीन्स the size of the RBCs are very small size of RBC. Okay, hypochromic means in RBC there is no hemoglobin, decreased hemoglobin in the RBC में hemoglobin का लेवल कम होता है, this is a hypochromic बोलते हैं. Okay, RBC स्लाइड में कैसे दिखता है? बहुत छोटा RBC दिखता है और उसको RBC के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता भी नहीं है. दिस इज माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं उसको. पेरिफेरल ब्लड स्मीयर. ओके, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर दिस प्रोवाइड्स द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द, ओके, आरबीसी का मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, आरबीसी का साइज क्या है, कितना है, उसके बारे में स्टडी करने के लिए पेरिफेरल ब्लड स्मीयर करते हैं. ओके, नेक्स्ट, द डायग्नोस्टिक डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज आयरन प्रोफाइल. आयरन प्रोफाइल चेक करना है. आयरन प्रोफाइल में सीरम आयरन चेक करते हैं. ओके, नेक्स्ट फेरिटिनिन चेक करते हैं. नेक्स्ट, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी TIBC. ये तीन मेन इंपॉर्टेंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फेरिटिनिन दैट प्रोवाइड्स एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. हमारा बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी है नहीं है वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है फेरिटिन. ओके, सो दिस थ्री आर वेरी एसेंशियल diagnostic evaluation in the iron deficiency anemia. So history, physical examination, total blood count, so peripheral blood film, iron profile. So iron profile कैसे चेक करते हैं? How it provides the accurate information. Why the microcytic hypochromic red blood cells are seen in these slides. So we will discuss in short views. Why the hemoglobin low, why MCV low, why PCV low, why mean corpuscular hemoglobin concentration low, why red blood cells are low in the iron deficiency anemia. So in short, so already I was explained in the first class, in first video, so how the iron is absorbed in our body. So iron available in our body in two form, so in animal product and plant product. So after animal product and plant product, so iron is enter in the, okay, iron is enter in the blood circulation. So iron, then if the body requires the iron, then required iron is enter into the blood circulation. This type of iron is called as what? Functional iron. आयरन हमारे बॉडी में दो तरह से होता है, एक फंक्शनल आयरन, एक स्टोरेज आयरन. जब फंक्शनल आयरन ठीक हो गया तब आयरन क्या होता है? स्टोर होने चालू होता है. स्टोर कौन सा फॉर्म में होता है? फेरिटिन. ओके, फेरिटिन इज ए स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन इन द बॉडी. बॉडी के अंदर क्या होता है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन है फेरिटिन. ओके, ये फंक्शनल आयरन इधर आता है. इधर आने के बाद लिवर से ओके एक प्रोटीन रिलीज होता है, लिवर के साथ बाइंड होता है. उसको क्या बोला हमने? ट्रांसफेरिटिन. ओके, ट्रांसफेरिटिन मीन्स जो सीरम में ब्लड में आयरन है, दैट इज अ सीरम आयरन. सीरम आयरन मतलब ओके, दिस इज ब्लड में जो है सीरम आयरन. सीरम फेरिटिन मीन्स
दिस इज द स्टोर्ड आयरन, बॉडी का स्टोर्ड आयरन। ओके, बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी है, आयरन अगर आयरन डेफिशिएंसी ब्लड में आयरन डेफिशिएंसी है तो बॉडी क्या करता है, जो स्टोर फॉर्म में है वो स्टोर फॉर्म का आयरन को यूज करने चालू करता है। अगर स्टोर फॉर्म का आयरन भी कम हो गए तो तब क्या होता है, बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। अगर स्टोर फॉर्म का आयरन भी नहीं है तो बॉडी का अंदर एक्चुअल आयरन डेफिशिएंसी होता है। जब तक स्टोर फॉर्म का सफिशिएंट है तो तब तक आयरन डेफिशिएंसी होता भी नहीं है, क्योंकि फंक्शनल में अगर आयरन डेफिशिएंसी हो गए तो वो स्टोर फॉर्म का आयरन लेता है। हमारा बॉडी ऐसा ही है, जब हमारे पास खत्म होता है जो स्टोर होता है हमारे घर पे वही यूज करने चालू करते हैं हम, जो भी है, पैसा है जो भी हो। ऐसा बॉडी भी क्या करते हैं, अगर ब्लड में आयरन कम हो गए तो स्टोर फॉर्म में कैसे है, फेरिटिनिन है, जो फेरिटिनिन यूज करने चालू करते हैं। सो दैट्स व्हाई आयरन में सीरम, आयरन प्रोपेल में क्या होता है, आयरन प्रोपेल में सो सीरम आयरन मतलब कौन सा, दिस इज द सीरम आयरन ट्रांसफेरिटिन, दिस इज आल्सो लो। ओके, नेक्स्ट फेरिटिनिन इज आल्सो व्हाट, लो। जब फेरिटिनिन कम आता है तब एक्चुअल आयरन बॉडी में है ही नहीं, ये इंडिकेशन करता है। नेक्स्ट टीआईबीसी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, इधर देख लीजिए। ओके, इधर आयरन आता है, लिवर से ट्रांसफेरिटिन होता है, एक मैं बोला एक ट्रांसफेरिटिन 2 आयरन मोलिक्यूल के साथ बाइंड होता है, एक ट्रांसफेरिटिन 2 आयरन मोलिक्यूल के साथ बाइंड होके इधर से कहाँ लेके जाता है, सो ये लेके जाता है बोन मैरो में। ओके, अगर इधर आयरन ही नहीं है, सो इधर आयरन नहीं है तो ये क्या करता है, ट्रांसफेरिटिन जिसके साथ ये ट्रांसफेरिटिन कितना रिलीज होता है, अगर 2 आयरन मोलिक्यूल हो तो ये 6 ट्रांसफेरिटिन रिलीज होता है, मतलब ट्रांसफेरिटिन ज्यादा ही रिलीज होता है, क्योंकि ओके ये ट्रांसफेरिटिन के साथ जो आयरन मोलिक्यूल्स कंबाइंड है उसको सैचुरेटेड ट्रांसफेरिटिन बोलते हैं। ओके, ये थोड़ा ज्यादा ही रिलीज होता है ट्रांसफेरिटिन। ओके, रिक्वायरमेंट से ज्यादा ही होता है, क्योंकि जितना आयरन आता है उसके साथ बाइंड होने के लिए ज्यादा ही होता है। सो इसमें क्या होता है, एक्चुअली आयरन का डेफिशिएंसी होता है, पर लिवर बॉडी कंपेंसेट करने के लिए, बॉडी क्या करने के लिए, मतलब बॉडी क्या समझते हैं, ओके, ट्रांसफेरिटिन आयरन को लेके भी नहीं आ रहा है ऐसा समझ के क्या करते हैं, ज्यादा ट्रांसफेरिटिन को रिलीज करते हैं, ज्यादा ट्रांसफेरिटिन को। सो ज्यादा ट्रांसफेरिटिन रिलीज किया तो दिस इज द टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बोलते हैं, कि आयरन के साथ बाइंडिंग का कैपेसिटी है, वो आयरन के साथ बाइंडिंग की कैपेसिटी हो। सो दैट्स व्हाई आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या दिखते हैं, इंक्रीज होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड है तो हार्ट रेट कितना होता है, 72 to 80 होता है नॉर्मली। अगर 4 लीटर ब्लड हो गए तो हार्ट रेट क्या होता है, 90, 100, 110 ज्यादा होता है। जैसा ब्लड वॉल्यूम कम होता है वैसा हार्ट रेट, क्यों, हार्ट कॉम्पेंसेट करने के लिए क्या करते हैं, हार्ट ज्यादा बीट करने के लिए चालू करता है, हार्ट बीट। एज द सेम जब आयरन कम है लिवर क्या करते हैं, ज्यादा ट्रांसफेरिटिन रिलीज करते हैं, क्योंकि आयरन को लेके जाने के लिए, पर एक्चुअल आयरन नहीं है। सो दिस इज कॉल्ड एज total iron binding capacity. Total iron binding capacity is increases in the okay iron deficiency anemia. The remaining serum iron and the ferritin level is remains low. Okay, this is the diagnostic evaluation of iron deficiency anemia. Okay, history collection, physical examination. Okay, so next ये इधर आयरन नहीं पहुंचते नहीं है। ओके, आयरन नहीं पहुंचते, सो आयरन नहीं पहुंचे तो आयरन कहाँ जाता है, ओके, प्रोटोफोर फायरिंग। ओके, मैं लास्ट टाइम में बोला था वो आयरन कहाँ जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द बोन मैरो सेल्स। सो इधर माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द बोन मैरो सेल्स को आयरन नहीं पहुंचते नहीं है, आयरन नहीं पहुंचे तो क्या होता है, विदाउट आयरन देयर इज नो आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड, दैट इज कॉल्ड एज ओके एरिथ्रोब्लास्ट बड़ा होता है, धीरे धीरे क्या होता है, एरिथ्रोसाइट्स छोटा होने चालू होता है। पर आयरन ही नहीं है तो क्या होता है, द डिक्रीज्ड साइज ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट, दैट्स व्हाई माइक्रोसाइटिक रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट हाइपोक्रोमिक, सो इसमें आयरन ही नहीं है तो हीमोग्लोबिन बनाता भी नहीं। हीमोग्लोबिन कंसिस्टिंग ऑफ हीम एंड ग्लोबुलिन, हीम इज अ आयरन सब्सटेंसेस, आयरन ही नहीं है मतलब हीम ही नहीं बनते, सो दैट्स व्हाई हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक रेड ब्लड सेल्स, क्यों, बिकॉज ऑफ देयर इज नो आयरन, देयर इज नो आयरन मींस there is no iron in the mitochondrial cells of the bone marrow. When there is no iron in the bone marrow, okay, the impaired or abnormal cells are RBC produced, that is a small RBC. Small RBCs are called as microcytic
there is no iron in the red blood cells, that is a hypochromic, means there is no hemoglobin inside the red blood cells. Okay, that's why हीमोग्लोबिन लेवल भी कम दिखता है. सो डिक्रीज हीमोग्लोबिन, इसलिए आरबीसी में क्या होता है, डिक्रीज हीमोग्लोबिन. ओके, डिक्रीज पैक्ड सेल वॉल्यूम, डिक्रीज रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी भी डिक्रीज होने चालू होता है. ओके, हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन भी कम होता है. सो इसलिए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सब कम भी दिखता है. ओके, दिस इज व्हाट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इज सिंपल है. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो आयरन का टैबलेट देना है, नहीं तो आयरन का इंजेक्शन देना है, और आयरन रिच कंटेंट फूड को एडमिनिस्टर करना है. दिस इज ए सिंपल मैनेजमेंट है. सो देयर इज नो स्पेशल हियर. मैनेजमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. सो मेन मैनेजमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज टू ट्रीट द कॉज. फर्स्ट ऑफ ऑल इज टू ट्रीट द कॉज. टू ट्रीट दी कॉज. आयरन डेफिशिएंसी बॉडी में क्यों हो रहा है वो सबसे पहले हम ट्रीट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल बॉडी में क्यों होते हैं, फॉर एग्जांपल सेकेंडरी रीजन से, पेप्टिक अल्सर से और गैस्ट्रिक कैंसर है, स्टमक में कैंसर है, पेप्टिक अल्सर है. सो पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक कैंसर से क्या होता है, कंटिन्यूस ब्लीडिंग होता है. ब्लीड मीन्स ब्लड में आयरन होता है. जितना ब्लड लॉस होता है उतना क्या होता है, आयरन का डेफिशिएंसी होता है. सो सबसे पहले जो काज है वो ट्रीट करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट इज आयरन रिप्लेसमेंट. ओके, आयरन रिप्लेसमेंट करना है. आयरन रिप्लेसमेंट थेरेपी. ओके, इसमें फेरस सल्फेट करके ओरल टैबलेट्स आता है. ओके, फेरस सल्फेट देना है. फेरस कार्बोनेट्स देना है. फेरस सल्फेट, फेरस कार्बोनेट्स, these are the iron content tablets है. ओके, 3 to 6 मंथ तक, जब तक आयरन का लेवल हायर होता है 6 to 9 मंथ्स तक कंटिन्यू चालू रखना है. ओके, अदरवाइज आईवी आयरन भी देना है. आईवी आयरन थेरेपी, दैट इज डेक्स्ट्रीन, आयरन डेक्स्ट्रोज करके आता है. आयरन डेक्स्ट्रोज करके इंजेक्शन आता है. सो बिफोर ट्रांसफ्यूज, ओके, दैट शुड बी एडमिटेड विथ 100 ml ऑफ एनएस. 100 ml एनएस में ओवर 2 to 3 आवर्स स्लोली आईवी इन्फ्यूज करना होता है. सो बिफोर गिविंग आयरन डेक्स्ट्रोज इंजेक्शन, सो टेस्टोज शुड बी टेस्ट. ओके, टेस्टोज टेस्ट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. सबसे पहला टू ट्रीट द कॉज, अदरवाइज आयरन सप्लीमेंट्स विथ द ओरल टैबलेट्स, फेरस सल्फेट एंड फेरस बाइकार्बोनेट. अदरवाइज IV iron therapy. Okay, IV iron therapy, dextrose are the IV iron. So iron is a black colored okay fluid, black color fluid आता है. So 100 ml NS में डाल के 2 to 3 hours slowly देना होता है. Just like a blood point जैसा, ब्लड पॉइंट्स जैसे केयर लेना है, प्रिकॉशंस लेना होता है. ओके, इसके अलावा और encourage the patient to eat iron content foods. आयरन कंटेंट फूड को खाने के लिए पेशेंट को क्या करना है, सो एनकरेज करना है. आयरन कंटेंट फूड इन लिवर, ओके, चिकन, ओके, रेड मीट मीन्स नॉनवेज में ज़्यादा मिलता है. सो एडवाइज द पर्सन्स टू ईट, ओके, नॉनवेज. अदरवाइज ओके, इन वेजिटेरियन में कैबेज में भी मिल सकते हैं. ओके, और somewhat the green leafy vegetables also contains the irons. Okay, so after iron should be administered with the meals. Actually iron is administered with the empty stomach में लेना होता है, for it that causes the very irritation to the mucous membrane of the stomach. So that's why iron should be administered with the meals के साथ लेना है. Okay, during iron supplementation the stool is like a black color. stool black color होता है, उसको डरना नहीं है क्योंकि stool पूरा black color का होता है और teeth भी black color होता है. So that's why the iron should be administered with the certain precautions. Okay, precautions के साथ administer करना होता है. So iron deficiency में सबसे पहला oral iron tablets देना है और IV iron dextrose देना है. So causes जो भी वो treat करना है,
पेशेंट को आयरन रिच कंटेंट फूड खाने के लिए बोल देना है. सो दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी anemia. So this completes the iron deficiency anemia. Next class we will discuss regarding the sickle cell anemia. Now today's class is dismissed. Thank you very much.